بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری نند کی شادی میرے بڑے بھائی کے ساتھ ہونے والی تھی۔ یہ وٹے سٹے کا رشتہ تھا۔ شادی کی رات بھابھی اپنے کمرے سے باہر نکل کر زور زور سے چیخنا چلانا شروع ہو گئی۔ سارے مہمان حیران ہو گئے۔ بھائی کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ ماں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی، تو میرا بھائی نظریں چرانے لگا اور جو کچھ اس نے بتایا یہ سن کر ہماری روح کانپ گئی کہ اس نے اور اس کے دوستوں نے دلہن کے ساتھ۔ میں تھکی ہاری اپنے کمرے میں آئی اور سونے کے لیے لیٹنے ہی لگی تھی کہ اچانک سے بے ہنگم سا شور برپا ہوا۔ میں گھبرا گئی کیونکہ گھر تو مہمانوں سے بڑا پڑا تھا اور نہ جانے رات کے اس پہر اچانک ہی کیا ہوا تھا جو چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے تو میں اپنی بھابھی کو رخصت کر کے گھر لائی تھی۔ آج میرے بھائی کی شادی تھی۔ شادی کی رسموں کے بعد اب جا کر میں سکون سے اپنے کمرے میں آئی تھی، لیکن ان آوازوں نے تو میری جان ہی نکال دی۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکلی اور دیکھا کہ لاؤنج میں میری نئی نویلی بھابھی عجیب سے حلیے میں کھڑی چیخیں مارنے لگی ہے۔ نہ ہی ان کے پاس دوپٹہ تھا، نہ ہی انہیں اپنے لباس کا ہوش۔ وہ ابھی تک اسی جوڑے میں موجود تھی۔ ان کے زیور گلے میں جھول رہے تھے۔ اب میں اور میری اماں انہیں چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تو قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو کوئی دوڑا پڑ گیا ہو۔ اس کی آوازیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ گھر میں موجود سارے مہمان اپنے کمروں سے نکل آئے اور عجیب عجیب نظروں سے بھابھی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ بھائی بھی بھابھی کے پیچھے ہی کمرے سے نکل کر باہر آئے تھے۔ ان کی حالت بھی بے حال تھی۔ گریبان کھلا پڑا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن وہ پوری طرح خاموش تھے اور چوروں کی طرح نظریں جھکائے کھڑے ہی تھے۔ انہوں نے بھابھی کو چپ کرانے کی کوشش کی اور نہ ہی کسی کو کچھ بتانے کی کہ اچانک بھابھی کو ہوا کیا ہے۔ شرمندگی اور خوف سے بھائی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں آدھے گھنٹے میں ان کے کمرے کے اندر کیا ہوا تھا جو بھابھی کا ایسا حال ہوا، اور اماں کا چہرہ تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ بھائی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں آدھے گھنٹے میں ان کے کمرے کے اندر ایسا کیا ہوا تھا جو بھابھی کا ایسا حال ہو گیا تھا، اور اماں کا چہرہ تو لال سرخ ہو گیا تھا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں ہمیں صحیح رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور جب بات حد سے زیادہ بڑھ گئی اور بھابھی کی چیخیں کنٹرول میں نہ آئیں تو میں نے قریب جا کر انہیں چھوا اور جھنجھوڑا اور کہا کہ اے بھابھی، خدا کا واسطہ ہے بس کریں بھابھی۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا تو مجھے خوف کا احساس ہوا۔ ان کا سارا میک اپ آنسوؤں میں بہہ چکا تھا اور ان کی حالت بہت ہی خراب لگ رہی تھی۔ وہ اچانک ہی میرے بازوؤں میں جھول گئیں اور میں انہیں سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھابھی کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر بھائی بھاگ کر آگے آئے اور انہیں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئے، اور بھابھی کے بے ہوش ہونے پر اچانک ہی سناٹا چھا گیا اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو اسی طرح سے کم از کم تماشا تو ختم ہوا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اب یہ تماشا تو ہر رات میں ہماری گھر کی زینت بنے گا۔ بھائی تو بھابھی کو لے کر کمرے میں چلے گئے، لیکن سارے مہمان ہکے بکے کھڑے رہ گئے اور جاننا چاہتے تھے کہ نئی دلہن کو تھوڑی ہی دیر میں ہوا کیا تھا۔ جتنی منہ اتنی باتیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کوئی دلہن پر اسیب ہو گیا ہے، تو کوئی کہہ رہا تھا اسے نظر لگ گئی، تو کسی کو لگ رہا تھا کہ اس کو دوڑے پڑ رہے ہیں۔ صحیح بات تو کسی کو بھی پتہ نہیں تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا لیکن یہ سب نے اپنے طور پر اندازے لگائے۔ اماں نے اٹھتے سوال دیکھے تو فوراً ہی بات بنائی اور کہنے لگی کہ بچی ابھی کم عمر ہے، شاید اپنے گھر والوں سے بچھڑنے کا غم کیا ہے۔ آج کل کی لڑکیاں تو ویسے بھی ماں باپ سے بہت زیادہ گھلی ملی ہوتی ہیں، ایک آدھے دن میں خود ہی سنبھل جائے گی۔ اماں کی بات سے کوئی مطمئن نہیں ہوا، لیکن سب واپس اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پہلے جہاں وہ جو خوشی کا سما تھا وہاں اب دھیمی دھیمی اداسی شروع ہو چکی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی ہر کوئی بھابھی کے حوالے سے ہی بات کر رہا تھا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر اماں کے چہرے پر تو 12 بج چکے تھے۔ خیر، مہمانوں کو مطمئن کر کے اماں بھی بھابھی کے پیچھے ان کے کمرے میں گئی تو میں بھی بھابھی کی فکر میں ان کے پیچھے چل پڑی۔ پتہ نہیں بھابھی کو ہوا کیا تھا۔ کچھ دیر پہلے تو میں ان کو اچھی بھلے ان کے کمرے میں بٹھا کر آئی تھی۔ مجھے ان کی فکر ستا رہی تھی، اور اماں بھائی کے کمرے میں داخل ہوئے تو بھابھی بھی کمرے میں اپنے بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ اماں نے غصے سے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ آدھی رات کو کیا تماشا لگایا تھا، سارے خاندان کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا تمہاری بیوی نے۔ تم دونوں نے پہلے ہی دن ہمیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو اس نے اتنا ہنگامہ کیا اور سارا گھر سر پہ اٹھا لیا؟ تم نے
अपनी बीवी को कोई बात की थी क्या, या कुछ गलत किया था, या फिर लड़की पागल है। भाई सर झुकाए खड़े थे और अम्मा की किसी बात का जवाब तक ना दे रहे थे। अम्मा ने दोबारा गुस्से में पूछा, बताओ काशिफ, क्या हुआ था तुम्हारे कमरे में जो ये पागल हो गई थी? क्या बात हुई तुम दोनों के बीच में? अम्मा सख्ती से सवाल कर रही थी और भाई थे कि अब भी चोरों की तरह सर झुकाए खड़े थे। भाई का रवैया देखकर अम्मा कहने लगी कि अब तो ऐसे ही सारी ज़िंदगी रन मुरीदी करेगा। आए हुए हैं और ज़रा काबू में रहें। मेरे बस में होता ना तो इसे हाथ पकड़कर हाथ यहाँ से चलता कर देती। खानदान वालों के सामने खूब इज्जत अफजाई करवाई है इसने, सालों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज पहली बार लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तो पहले ही इस तलाक याफ्ता लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी। बस ये तुम्हारी ज़िद की वजह से अपनी बेटी की नंद की शादी तुम्हारे साथ कर दी, और न जाने इसने अपनी पहली शादी भी क्या गुल खिलाए थे जो इसे अगले ही दिन तलाक का तगमा मिल गया था। लेकिन तुम दोनों बहन भाइयों ने मिलकर ज़बरदस्ती से हमारे सरों पे मुसल्लत किया है। अब तुम्हारी बहन की वजह से सारी ज़िंदगी इसे भुगतना पड़ेगा। अम्मा गुस्से में तन फन करती अपने कमरे में चली गई और मैं भाई के सामने खड़ी रह गई। भाई ने खामोश नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी कि मैं बहुत थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ। मैंने परेशानी से भाई से कहा कि जब भाभी होश में आ जाए तो क्या होगा? क्या आपने भाभी से कुछ कहा था? ऐसा ना हो कि वो होश में आकर कोई नया हंगामा खड़ा कर दे। मेरी बात सुनकर भाई कहने लगे, मियाँ बीवी के दरमियान होने वाली बातें क्या मैं तुम्हें बताऊँगा? तुम फिक्र नहीं करो, कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो चुका। तुम भी सारे दिन की थकी हो और जाकर सो जाओ। भाई का रवैया बहुत ही अजीब था। उनकी बात सुनकर तो मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन थकन और नींद दोनों ही गायब थी। भाभी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और मैं डर के मारे कांप रही थी कि अब मेरे ससुराल वाले मेरे साथ क्या करेंगे। क्या वो रिश्ता तोड़ देंगे मेरा? अगर इन्हें पता चल गया कि जिस तरह वो पागलों की तरह चीखें मार रही थी, ऐसा लगता था जैसे वो होश में ना हो। जबकि रुखसती के वक़्त तो भाभी अच्छी भली थी, और ना ही वो रुखसती के वक़्त ऐसे रोई जैसे उन्हें अपने माँ बाप की जुदाई का कोई बड़ा सदमा हो। तो फिर आधी रात को ऐसा क्या हुआ था फिर, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे ख़ानदान के सामने हमें ज़िल्लत से दो चार करवा दिया? मैं जानती थी कि माँ का गुस्सा भी इतनी जल्दी से ठंडा नहीं होगा, क्योंकि माँ तो पहले ही वटे सटे के रिश्ते के ख़िलाफ़ थी। क्योंकि मेरी भाभी सिर्फ मेरी भाभी ही नहीं थी, बल्कि वो मेरी नंद भी थी। और ये रिश्ता मैंने भाई के कहने पर ज़बरदस्ती करवाया था। मेरी और उस्मान की मंगनी वाले दिन भाई ने पहली दफ़ा बुशरा को देखा था, और इसी दिन भाई ने मुझे कह दिया कि वो बुशरा से शादी करेंगे। मैंने भाई को बताया था कि वो एक तलाक याफ्ता लड़की है और उसे शादी की पहली रात ही तलाक हो गई थी। लेकिन भाई को तो उससे ऐसी मोहब्बत हुई कि वो अपनी बात पर अटल ही हो गए और कहने लगे कि अगर कोई लड़की उनकी बीवी बनेगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बुशरा होगी। मैंने जिस किसी से भी बुशरा के बारे में मालूम किया, हर किसी ने उसी की बहुत तारीफ़ की, मगर कोई भी नहीं जानता था कि पहली तलाक क्यों हुई थी। वो ना सिर्फ कम उम्र बल्कि घरेलू कामकाज में बहुत ही सिगर थी, और ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। लेकिन फिर उसे तलाक क्यों हुई थी, किसी को खबर नहीं थी। जब अम्मा को काशिफ भाई की मोहब्बत का इल्म हुआ तो उन्होंने सख्ती से कह दिया कि वो मोहब्बत की शादी के सख्त खिलाफ है। अगर बुशरा घर आकर घरदारी नहीं निभा सकी तो मेरे रिश्ते को भी फ़र्क पड़ेगा और इस तरह हर रिश्ता बिखर जाएगा। काशिफ भाई ने यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और फिर जब भाई ने मिलकर अम्मा पर जोर डाला तो अम्मा राज़ी हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे भाई को अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना पड़े, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मैं एक गलत फ़ैसला करने जा रही थी जिससे मेरी बहुत सारी ज़िंदगियां तबाह हो जाएंगी। भाई और भाभी की शादी की तकरीब के दौरान ही मैंने कुछ लोगों की ये बातें करते सुना कि बुशरा को कौन ब्याह लेकर जा रहा है। पता नहीं किसका दिमाग ख़राब हो गया जो इस पागल लड़की से अपने बेटे की शादी कर रहा है। देखना ये दूसरी भी तलाक लेकर ही जल्द वापस आएगी। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रिश्तेदार उन मोहल्ले वालों की तो आदतें होती हैं बात का बतंगर बनाने की। मासूम सी बुशरा का क्या कसूर था? अगर इसे शादी की पहली रात तलाक हो गई थी तो हो सकता है कि इसके ससुराल वाले ही अच्छे लोग ना हों। ये सोच के मैंने इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया।
मैं अपने भाई की खुशियों में रंग में भंग नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शादी की पहली रात ही बुशरा की ऐसी हालत को देख के मुझे उन लोगों की बातें याद आ गई कि बुशरा को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। लेकिन अगर ऐसी बात थी कि इसके घर वालों ने हमें ये बात क्यों नहीं बताई। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि उस्मान का फ़ोन आ गया। मैंने फ़ौरन उस्मान का फ़ोन उठाया तो वो बुशरा के बारे में पूछने लग गई कि वो ठीक है कि मैम कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस्मान को अपनी बहन की हालत का इल्म ना हो चाहता है, लेकिन मेरा लहजा तल्ख हो गया और मैंने उस्मान को थोड़ी देर पहले ही सारे तमाशे के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर बहुत फिक्रमंद होने और कहने लगे बुशरा पागल नहीं है और ना ही इस पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ज़रूर कोई ऐसी बात हुई होगी जिसने उसे डिस्टर्ब कर दिया। वो अपनी तलाक से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। क्या उसके और काशिश के दरमियान कोई बात हुई है? उस्मान के इस सवाल पर बहुत गुस्सा आया और उसे समझाने की बात करते बल्कि उल्टा मेरे भाई का कसूर निकाल रहे थे। मेरा भाई तो मोहब्बत उसकी बहन को ब्याह कर लाया था। मैंने गुस्से में फ़ोन ही बंद कर दिया। अम्मा की बात बिल्कुल ठीक निकली। वट्टे सट्टे के इस रिश्ते से सब कुछ बिखेर दिया था। मेरे सर में शदीद दर्द होने लगी। खुदा खुदा करके सुबह हुई तो मुझे नींद आने लगी और जब दोपहर के वक्त मैं कमरे से निकली तो सारे मेहमान अपने घरों को लौट चुके थे। भाई पता नहीं कहाँ थे और भाभी अपने कमरे में थी। अम्मा का मिजाज भी बिगड़ा हुआ था और वो खामोशी से लाउंज में बैठी हुई थी और मैं अम्मा के पास जाकर बैठी तो अम्मा कहने लगी, तुम्हारी प्यारी भाभी सुबह से कमरे से बाहर नहीं आई। जाओ जाकर पता करो कुछ खाना पीना भी है या नहीं। जितना तमाशा वो लगा चुकी हैं, अब उसके बाद भी वो कोई कुछ बाकी रह गया है कि मैं फ़ौरन भाभी के पास गई और अपने बिस्तर में सिमटी हुई बैठी थी। ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी खौफ का शिकार हो। मुझे देखते उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे। मैंने परेशान होकर पूछा, बुशरा भाभी आखिर क्या बात है? रात भी आपने बहुत तमाशा किया, मसला क्या है, ताकि आपकी परेशानी को ख़त्म किया जा सके। वो मेरे सीने से लग गई और रोने लगी। कुछ देर तक आंसू बहाती रही, लेकिन मेरे लाखों पूछने पर भी उन्होंने अपने मुँह से एक लफ्ज़ ना निकाला। मैं उनसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उनकी हालत देखकर खामोश हो गई। पता नहीं शादी की रात ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें इतना ज़्यादा परेशान कर दिया। कि काशिफ भाई ने तो उनके साथ कुछ गलत नहीं कर दिया। इस सोच के आते ही मैं बहुत परेशान हो गई। कुछ देर बाद भाभी के घर वाले इस रस्म के मुताबिक उन्हें लेने के लिए आ गए तो अम्मा ने बड़े ही बुरे तरीके से उन्हें और उनकी बेटी का कारनामा सुना दिया। ये सुनकर भाभी की अम्मी यानी मेरी सास परेशान हो गई और कहने लगी कि बुशरा बहुत ही अच्छी बच्ची है, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती, तो ऐसी कोई बात नहीं है जिस वजह से वो इस हरकत पर मजबूर होगी। भाभी की अम्मी की बात सुनकर तो अम्मा का भी मिजाज बिगड़ गया। अम्मा कहने लगी, वाह क्या बात है, आपकी बेटी ने पहली रात ही हमारी इज्जत की धज्जियाँ बिखेर दी और आप हैं कि हमें ही इल्ज़ाम ठहरा रही हैं। अगर आपकी बेटी इतनी ही अच्छी है तो फिर इसे पहली तलाक क्यों हुई जिसके बारे में आप लोग बात भी नहीं करते। लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर होगी ना जिससे आप लोग छुपा रहे हैं। और भाभी की अम्मा की बात पर घबरा गई और कहने लगी, नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस बेटी की फ़िक्र में ऐसा कह गई हूँ। आप मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें। मैं बुशरा को अच्छी तरह समझा दूँगी, अब वो कुछ गलत नहीं करेगी। वो कुछ देर बैठी और भाभी को अपने साथ लेकर चली गई। इनके जाने के बाद भी अम्मा गुस्से में बड़बड़ाती रही कि ना जाने क्यों बुशरा की पहली तलाक हुई थी। हमने इस बारे में ज़्यादा छानबीन भी ना की और ना ही वो लोग हमें खोलकर कुछ बताते थे। अम्मा को यकीन था कि सारा किस्सा बुशरा का ही है और रात भी जो कुछ हुआ उसने जानबूझकर किया। अम्मा ने भाई को भी साफ साफ कह दिया कि अब बुशरा को लेने जाने की ज़रूरत नहीं। उसकी माँ जिस तरह से लेकर गई है ना, इसी तरह वापस छोड़ जाएगी। शादी के पहले ही दिन सारे रिश्तों में इतना ज़्यादा तनाव आ गया कि उस्मान ने मुझे सारा दिन फ़ोन नहीं किया था और रात के वक्त उस्मान खुद बुशरा भाभी को हमारे घर छोड़ कर गया। भाभी खामोशी से अपने कमरे में चली गई थी और मैं रोते हुए दिल के साथ अपने कमरे में चली गई। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उस्मान हमारे दरवाजे पे आया हो और मुझसे मिल कर ना गया हो। पता नहीं बुशरा भाभी ने ऐसा क्या कर दिया, मैके जाकर हमारे बारे में क्या कुछ कह दिया जो उसका रवैया ही बदल गया। मैं इन्हीं सोचों में उलझी हुई थी कि थोड़ी ही देर में सारा घर फिर चींखों से गूंज उठा और पहली ही चींख पर मैं समझ गई कि हो ना हो बुशरा भाभी हैं जो रात होते ही अपने पागल हुई हैं। जब उसकी चीखें बढ़ने लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर आई तो थोड़ी ही देर में वो भागती हुई अपने कमरे से बाहर निकल आई। आज भी उसका वही हाल था, फिर से उसका हुलिया बिल्कुल बेतरतीब था और वो पागलों की तरह खुद को मार रही थी। अम्मा भी अपने कमरे से निकल आई और काशिफ भाई की तबीयत खराब हो गई और बुशरा के पीछे ही चल आए थे। अम्मा ने तमाचे उसके मुँह पे दे मारे। ऐसा लगा जैसे भाभी को होश आ गया हो। अचानक ही वो बिल्कुल खामोश हो गई और वो आंसू बहाती फर्श पर गिरती चली गई।
अम्मा शदीद गुस्से के आलम में भाई से कहने लगी कि अब इसे फारिग कर दो। इसने तो तुम अच्छा तमाशा लगा दिया है। आस पड़ोस हमारे बारे में क्या बातें करते होंगे। आखिर हमने नई नवेली बहू को कौन सा सितम ढा दिया है जो रात होते ही पागलों की तरह चीखने लगती है। अम्मा की इस बात पर काशिफ भाई अम्मा को घूरने लगे और कहने लगे, आप ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, मैं बुशरा को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये इस घर से और मेरी ज़िंदगी से कहीं नहीं जाएगी। बेशक ये सारी ज़िंदगी इसी तरह शोर मचाती रहे। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गया। लेकिन उसके इस अंदाज़ पर अम्मा तो हैरान ही रह गई। आज तक कभी काशिफ भाई ने अम्मा से इस तरह बात नहीं की थी। मैं भाभी को वापस उनके कमरे में छोड़ आई। वो बिल्कुल खामोशी से अपने कमरे में लेट गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। ना ही भाई कुछ बता रहे हैं, ना ही बुशरा अपने मुंह से एक लफ्ज़ निकाल रही है। उस्मान भी मुझसे नाराज़ है, शायद इसलिए मुझे फ़ोन नहीं कर रहा था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था ये मसला कब और कैसे हल होगा, और इस सब तमाशे के पीछे असल वजह क्या थी। अम्मा ने तो एक ही रट लगाई थी कि बुशरा को तलाक दिलवा कर हमारे घर का सुकून वापस हासिल करेगी। लेकिन भाई किसी सूरत बुशरा को नहीं छोड़ना चाहते थे। इस तरह भाभी की शादी एक हफ्ता गुजर गया और हर रात हमारे घर में यही तमाशा होने लगा। अम्मा ने भाभी की चीखों पर अपने कमरे से निकलना ही भी छोड़ दिया। मैं ही जैसे तैसे भाभी को संभाला करती थी और वापस इन्हें उनके कमरे में छोड़ आती। और फिर एक दिन जब सब कुछ अम्मा की बर्दाश्त से बाहर हुआ तो अम्मा ने भाई को धमकी दी कि अगर उन्होंने बुशरा भाभी को तलाक न दी तो अपनी जान ले लेंगी। अम्मा की ये बात सुनकर भाई परेशान हो गए और अम्मा के आगे हाथ जोड़े कि वो इन्हें इस जुल्म पर मजबूर ना करें। जो कुछ भी हो रहा है इस बुशरा की कोई गलती नहीं है। और इसके बाद भाई ने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर हमारे कदमों तले ज़मीन निकल गई। भाई ने रोते हुए बताया कि 7-8 साल पहले उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मासूम लड़की को अगवा किया था और उसे अपनी हवस का निशाना बनाया था। वो लड़की स्कूल जा रही थी और एक सुनसान सी सड़क पर भाई और उसके दोस्तों के हाथ लग गई। इस वक्त भाई और उनके दोस्त दीवानी के नशे में थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ भाई को एहसास हो गया कि उन्होंने गलती की नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह किया है और एक मासूम लड़की को ज़िंदगी भर के लिए बर्बाद कर दिया। इस बात के एहसास के साथ भाई हर दिन बेमौत मर रहे थे। और फिर इन्हें उनकी उसी के बारे में भी इल्म हो गया कि शादी की पहली रात भी बुशरा को तलाक हो गई थी। भाई अच्छी तरह जानते थे कि कहीं न कहीं इनके पीछे उनकी वो ज़्यादती है जो उन्होंने सालों पहले बुशरा के साथ की थी। इसलिए उन्होंने बुशरा से शादी की ज़िद पकड़ ली। बुशरा शक्ल नहीं पहचानती थी, लेकिन शादी की पहली रात ही काशिफ भाई ने खुद ही अपनी हकीकत बता दी। और भाई की हकीकत जानने के बाद माजी इसकी नज़रों के सामने घूमने लगा, क्योंकि बुशरा को शादी की पहली रात ही होने वाले जुल्म के बारे में सारी बात बता दी। वो किसी झूठ के सहारे से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। इसके साथ घर वालों ने तो उस बात को छुपाने की कोशिश की, मगर बुशरा ने यह सब कुछ अपने शोहर को खुद ही बता दिया था, जिसे सुनने के बाद उसके शोहर ने उसे छोड़ दिया। लेकिन हर किसी को यही लगता था कि वो नफसियाती लड़की है, इसलिए उसके शोहर ने उसे छोड़ दिया। क्योंकि ज़्यादती के वाक़े के बाद कुछ अरसे तक बुशरा को इसी तरह के दौरे पड़ते रहते थे। लेकिन फिर उसके घर वालों ने इसका इलाज करवाया था। ये जानकर अम्मा के सर पर आसमान गिर पड़ा कि बुशरा की हालत का ज़िम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही बेटा था, जिसने इतना बड़ा गुनाह किया था, जिसकी कोई माफ़ी नहीं थी। भाई ने हाथ जोड़कर न सिर्फ अम्मा से बल्कि बुशरा से माफ़ी मांगी, बल्कि इस बात का भी यकीन दिलाया कि वो ऐसे एक अच्छी ज़िंदगी देंगे। बुशरा को नॉर्मल होने के लिए कुछ वक्त चाहिए, लेकिन भाई को यकीन था कि वो जल्द सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर कुछ अरसे बाद भाभी भी बिल्कुल ठीक हो गई। कुछ अरसे बाद उनकी ठीक होने के साथ साथ हमें एक खुशखबरी भी मिली कि मैं अब फूफो बनने वाली हूँ। फिर अल्लाह पाक ने मुझे भतीजी से नवाजा और इसी दौरान मेरी भी उस्मान से शादी हो गई और हम चारों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।